So this has mass m. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? The forces on the body from by the surrounding. The the surface, the inclined surface will apply a normal reaction like this. Normal reaction on the object. mg would be acting downward. So at this moment, only these two forces would be acting on it. Normal reaction and gravitational force working vertically downward. The motion would be like this. Let's take this x-axis and this is y-axis. The motion is along x and y-axis. The mass will slide down over the inclined plane. Diagram बना लो. So whenever an object is placed on an inclined plane, minimum two forces would be acting like this. mg by the earth, gravitational force by the earth, and normal reaction by the surface. हमेशा हम फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, वन अलोंग विद द मोशन, अनदर विद परपेंडिकुलर टू द मोशन. तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इन फोर्सेस को, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज mg. इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, तो as such this would be 90 degree, this would be 90 minus theta, so this would be theta. ये एंगल थीटा हो जाएगा. So this mg I'll resolve into two components. One is along the theta. Along the theta would be mg cos theta, and the other would be mg sin theta. So whenever we have a body placed on smooth inclined plane, हमेशा will show three forces. One force, normal reaction, another mg sin theta, and third mg cos theta. मिनिमम तीन फोर्स तो होंगे ही होंगे. जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन सरफेस पे रखा होगा, विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम लाइक दिस. बना लो. अब उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, ठीक है. So what is Newton's second law? This is motion along x-axis, this is motion along y-axis. This mass is not jumping on the y-axis. There is no motion along the y-axis. ऑब्जेक्ट का कोई भी मोशन y-axis में नहीं है. इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस mg cos थीटा. तो इस बार नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया. जितने भी पहले वाले केसेस थे उसमें हमने नॉर्मल रिएक्शन mg लिया था. नाउ इट इज बिकम mg cos थीटा. और द बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a. तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है? mg sin थीटा. तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ वी आर यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ. नेट फोर्स along the incline is this mg sin theta equal to m into a. m से m कट जाएगा,
एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा. तो whenever you place an object on inclined plane, the body will accelerate with acceleration g sin theta. जबकि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितना होता है? g होता है. इफ ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, एक्सेलरेशन g. लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन g sin थीटा हो जाएगा. एक क्वेश्चन कर लो. There's an inclined plane of height 2 meter and say this angle is 30 degree. An object of mass 5 kg is placed here. Find the time and the velocity by which the mass falls on the ground. लिखो in the diagram, in the given diagram, find acceleration of the mass, time after which it reaches the ground, time after which it reaches the ground, and its velocity before reaching the ground, and the velocity before reaching the ground. करो. एक्सेलेरेशन तुम्हारा यहीं से आ जाएगा, जी साइन थीटा है ना. there's no g sin theta is acceleration, sin theta is sin 30, g को 10 ले लेते हैं. Sin 30 is 1 by 2. So acceleration is 5 meter per second square. Right? Acceleration is 5 meter per second square. अब velocity और time कैसे आएगा? Equation of motion. Hmm? Equation of motion. Yes, sin 30, say this displacement from here to here is s. So we can find as sin theta is perpendicular by hypotenuse. So 30 is equal to 2 by s. S would be 4 meter. Displacement is 4 meter. So now since displacement is 4 meter, you can use s equal to ut plus half ad square to find the. So now use second equation of motion. S equal to ut plus half at square. S is 4, u would be 0 because started from rest. Half a is 5 t square. So t square would be 8 by 5. That is 1.6. T would be under root of 1.6. Time taken to reach the ground would be 1.6 under root. You see, 1.2 square is 1.44, right?
1.3 square is 1.69. So it'll be approximately 1.25 or something. If you want to can calculate, how do you calculate this? Take it 160 by 100. So you find root of 160 by 10. So that's how you can calculate it. But it'll be around that only. 1.69 का रूट होगा 1.3, तो इसका 1.25 के आसपास रूट आना चाहिए. And once you know that, you can calculate the velocity also using v is equal to u plus at. You can calculate v also by third equation of motion. What is third equation of motion? V square equal to u square plus 2s. You can use this also. V square is 0, 2a we already know, 5s is 4. So under root 40. 6.33. 2 root and what? 6.33 ठीक है. Velocity 6.33 meter per second. So this is when you have inclined mass placed on inclined plane. 3 minimum forces you have to. Suppose you have a system like this, inclined plane. This angle says 30 degree. There's a mass placed over here, pulley, and there's a hanging mass. So this is 5 kg. This is 20 kg. Find acceleration and tension. So I've taken acceleration upward and downward. You can take other way around also. If actual acceleration is in the same direction, A would be positive, otherwise will be negative. So draw FBD. So draw FBD of both the diagrams. Apply Newton's second law and solve. ये इसका FBD बन गया, देखो. 3 मिनिमम फोर्सेस मैंने दिखा दिए एंड एक टेंशन लग रहा है बिकॉज रोप इज ऑल्सो देयर. So now you form the equation. You can also show FBD separately, okay? So Newton's second law. न्यूटन सेकंड लॉ में क्या हो रहा है अब? अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी तो जंप कर नहीं रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा? इस फोर्स को बैलेंस कर देगा. 20g cos 30. दिस वी डोंट नीड एट द मोमेंट बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है. इस डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी? इट विल बी 20g sin 30 minus t, because t opposite डायरेक्शन में बॉडी ऐसे जा रहा है नीचे, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन.
right? Second mass is going up. So which force should be greater? Sure, is going up. This force is more than this. So T minus 5g equal to mass into acceleration. दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, टेंशन दूर हो जाएगा, एंड यू गेट द एक्सेलरेशन. क्या आ रहा है दिव्या एक्सेलरेशन? 2 meter per second square. आवाज नहीं आ रही, बाकी तो एक्सेलरेशन तुम्हारा आ चुका होगा. 2 meter per second square. Okay. So 25 is equal to 20g. G is 10. Sine 30 is 1 by 2 minus 5g. So 25a is equal to 50. A आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है ना? Hmm. And then you substitute the equation number 3, get the tension also. ठीक है? क्या हुआ? नहीं आ रहा? क्यों? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्या आ रहा है जिया? टी के लिए किसी भी इक्वेशन में डाल दो. 5 into a is 2. So T would be 60 Newton. खत्म. हो गया शौर्य? रोटेशनल की मैं तुम्हें क्लासेस ना दिव्या सेंड कर दूंगा. लास्ट डे वाला ना, तो उनको अभी से गो थ्रू करना शुरू करना. जो डाउट होंगे फिर डाउट करा दूंगा मैं, क्योंकि वर्क पा रहे तक तो यहाँ पे ढंग से अब हो जाएगा, क्योंकि आज इंक्रीज द टाइम ऑफ क्लास ना 2 2 hours कर दिया है, तो ढंग से सारा हो ही जाएगा. नाउ इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन. अब तक जो हमने सारा डिस्कस किया था वो सारा आइडियल सिचुएशन था, जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं होता है. अगर फ्रिक्शन नहीं है एंड यू प्लेस a mass on a smooth surface and push it, give some velocity to it, तो वो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं. बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. नहीं. अगर एक स्मूथ सरफेस हो, एक स्मूथ रोड बना दो पूरे अर्थ पे, एक मास को मूव कर दो, चलता चलता वापस वापस आएगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं कभी. बट ऐसा होता नहीं है. वी कम अक्रॉस फ्रिक्शन एवरीवेयर. सो व्हाट इज फ्रिक्शन? लेट्स डिस्कस दैट नाउ. सपोज एन ऑब्जेक्ट, घर पे कोई सपोज अलमीरा है बड़ी सी, तो मैं उसको पुश करना है, फ्रिक्शन है. ठीक है. बिग ऑब्जेक्ट, मास ले लो कैपिटल एम, और तुम उसको पुश करने की कोशिश करो. दिव्या फोर्स लगा रही है, उसने 2 न्यूटन फोर्स लगाया बेचारे ने, खाना खाया नहीं था. 2 न्यूटन फोर्स. ठीक है. तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. कैपिटल एफ इज अप्लाइड फोर्स. तो बॉडी, द अलमीरा इज नॉट मूविंग. इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? 2 न्यूटन, या 2 न्यूटन से बड़ा है उससे छोटा? 2 न्यूटन से बड़ा. 2 न्यूटन से बड़ा. 2 तो अगर 2 न्यूटन से न्यूटन बड़ा मान लो, मैंने 3 न्यूटन मान लिया, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ये अप्लाइड फोर्स कम है, तो अलमीरा उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी फिर तो. अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? अलमीरा उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगी फिर तो बेस्ट है, इधर से थोड़ा सा फोर्स लगा दो, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, अपने आप लिफ्ट वो मूव हो जाएगी. तो ऐसा नहीं होता है. फ्रिक्शन फोर्स विल बी एग्जैक्टली 2 न्यूटन. फिर इसने कुछ पेप्सी कोक पी, थोड़ी एनर्जी आई, एनर्जी ड्रिंक, इसने फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन. अभी भी अलमीरा मूव नहीं कर रही. फिर क्या हुआ? इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना है अब? 3 Newton. यस, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट. फिर क्या करें अब? इसने सिस्टर को भी बुला लिया.
दोनों ने मिलकर जोर लगाया, 4 न्यूटन फोर्स हो गया. इट इज नॉट स्टिल मूविंग. दैट मीन्स द फ्रिक्शन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड. कहने का मतलब फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है. फिर मम्मी भी आ गई. फ्रिक्शन फोर्स लग गया और ज्यादा. अभी भी लिफ्ट वो नहीं मूव हो रही है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया. फिर एंड में जाके पापा को बुलाया. 6 न्यूटन. नाउ द इट इज अबाउट टू मूव. अबाउट टू मूव का मतलब है कि अब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स हम लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा. सो इस मोमेंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट विल बी कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसके बियॉन्ड अगर हमने फोर्स लगाया, अगर 7 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इट विल हैव सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन. बिकॉज इस मोमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स उतना ही रहेगा, 5 न्यूटन ही रहेगा. सॉरी 6. अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, मतलब ये नहीं कि सेल्फ एडजस्टिंग तो बढ़ता ही जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर ऐसा होता तो कोई ऑब्जेक्ट कभी मूव ही नहीं कर सकता था. ये डायग्राम बना लो, लिख लो, और फिर इसकी कहानी सुनेंगे. ठीक है. ग्राफ कैसा बनेगा? अप्लाइड फोर्स मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया है, वर्टिकल एक्सिस पे हैव टेकन फ्रिक्शन फोर्स. तो जब हमने अप्लाइड फोर्स 1 लगाया था तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 था. इसको 2 किया तो ये भी 2 हो गया. ये 3 था तो ये भी 3 हो गया. कहने का मतलब इट वुड बी एन इंक्लाइंड लाइन एट एन एंगल 45 डिग्री टिल यू रीच द वैल्यू 6 न्यूटन. तो ये भी 6 न्यूटन हो जाता है. एंड आफ्टर दैट फ्रिक्शन फोर्स विल नॉट इंक्रीज, मतलब इट वुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन. बट एक्चुअली होता है कि थोड़ा डिप भी करता है, हल्का सा डिप करता है फिर नीचे जाता है. ये डिप क्यों करता है, आई एक्सप्लेन यू लेटर. It goes like this. So this is the graph between applied force and friction force. ये ग्राफ आ सकता है. तो होता क्या है कि even though the smooth you have two smooth surfaces, but still if you look with the help of microscope वो थोड़ा सा रफ तो होती हैं. And you'll find that at some points the two surfaces are in actual contact. ठीक है. Because एक surface इस तरह से, अगर हमने माइक्रोस्कोप से देखा, नीचे वाली सरफेस भी इस तरह से है. तो कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसमें होंगे, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जैसे ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ है, यहाँ है.
तो जहां पे भी एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वहां पे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज एवरी मटेरियल इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग, दे आर प्रोटॉन्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. So electromagnetic forces are there, and because of these electromagnetic forces, they form cold weld. तुमने देखा होगा hot welding, इसको बोलते हैं cold welds, because electromagnetic force between two materials की वजह से यहाँ पे ये cold weld बन गए, ज्वाइन हो गए आपस में. तो this is the cause of friction. तो नॉर्मली अगर सरफेस बहुत रफ है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा स्मूथ किया तो फ्रिक्शन कम हो जाता है. लेकिन हमने किसी सरफेस को अल्ट्रा स्मूथ कर दिया, अगर अल्ट्रा स्मूथ कर दिया तो पता है क्या होता है? अल्ट्रा स्मूथ का मतलब है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी ये सिचुएशन है, ऐसी नहीं होगी. दैट मीन्स द एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया जहाँ कोल्ड वेल्ट्स बनेंगे वो बढ़ जाएंगे. तो अल्ट्रा स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है. अगर स्मूथ सरफेसेस माइक्रोस्कोपिकली एटॉमिक लेवल पे बहुत स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स वुड बी एक्सट्रीमली लार्ज. मुझे मालूम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मशीन पार्ट्स. तो क्या होता था, दे यूज टू बी, इस तरह से कॉइन्स होते थे, थिक कॉइन्स, अल्ट्रा स्मूथ होते थे वो. किसी की थिकनेस 0.1 मिलीमीटर, किसी की 0.2 मिलीमीटर. तो हम क्या करते थे, गैप के अंदर उनको फिक्स करते थे, प्लेस करते थे, टिल यू कैन प्लेस अनदर कॉइन ओवर देयर. और उन सबको इकट्ठा निकाल लेते थे बाहर, बिकॉज दिल ज्वाइन विद ईच अदर. और फिर उनको मेजर कर लेते कितना उसका थिकनेस है, तो दो मशीन पार्ट के बीच का डिस्टेंस पता लग जाता था. तो वो इतना अल्ट्रा स्मूथ होता है कि अगर एक कॉइन को तुमने दूसरे प्लेस कर दिया तो कांट टेक देम आउट लाइक दिस, उनको बिल्कुल स्लाइड करके निकालना पड़ता है, बिल्कुल फ्रिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है. तो अगर बहुत अल्ट्रा स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा. तो फ्रिक्शन का बेसिक कॉज ये है कि देर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस विच ज्वाइन देम टुगेदर. तो होता ये है कि जब और फ्रिक्शन फोर्स तभी प्ले में आएगा देन व्हेन ओनली यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. एज लॉन्ग एज यू डोंट अप्लाई एनी फोर्स, कितना भी रफ सरफेस क्यों ना हो, हमने अगर फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? जीरो. फ्रिक्शन फोर्स तभी होगा जब तुम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो. तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग ऑपोजिट टू लाइकली डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो मोशन का डायरेक्शन के उसके ऑपोजिट में वो वर्क करेगा. सेकेंड पॉइंट इज फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. फोर्स को हमने जैसे जैसे बढ़ाया, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया. बट दिस ए लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 6 न्यूटन, जिसके बियॉन्ड फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा, बिकॉज दैट इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब बात ये आती है उसके बाद अगर अप्लाइड फोर्स हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट हो गया, रादर डिप हो गया. डिप क्यों हो रहा है उसका एक रीजन है. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास साथ कांटेक्ट में है, दे आर नॉट इन मोशन, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. बॉडीज आर एट रेस्ट. तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कोल्ड वेल्ट्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं. बट अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो टू फॉर्म कोल्ड वेल्ट्स विल बी डिफिकल्ट फॉर द बॉडी. एज अ रिजल्ट देन द फ्रिक्शन विल बी स्लाइटली लेस, एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो ये जो फ्रिक्शन था ऊपर वाला थोड़ा सा, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन नॉट इन मोशन. और जब डिप थोड़ा सा हुआ तो ये कौन सा हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. रीजन क्या है? when the body is in motion it's difficult for the body to form cold welts, तो फ्रिक्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. दैट्स व्हाई द ग्राफ डिप्स. तो फ्रिक्शन की कहानी तो समझ में आ गई. अब कुछ फाइनर पॉइंट्स इसके लिख लेते हैं. लिखो नंबर वन, पॉइंट नंबर वन. फ्रिक्शन is electromagnetic in nature. Friction force is electromagnetic in nature, which depends upon the nature of two surfaces in contact. Nature of two surfaces in contact. तो दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा.
जैसे रबर और कंक्रीट में देयर इज गुड इनफ फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई वी प्रेफर रबर टायर्स टू रन अ व्हीकल ऑन द रोड, कंक्रीट रोड। वेरेज स्टील के ऊपर स्टील ही मूव करता है। जैसे ट्रेन के जो टायर है वो व्हील जो है वो स्टील के होते हैं और ट्रैक भी स्टील का होता है। So it depends upon nature of two surfaces in contact. That's point number one. Next लिखो, friction force is a self-adjusting force. Friction force is a self-adjusting force. तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, इक्वल होगा। अप्लाइड फोर्स ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। आगे लिखो इसी उसमें, as long as body is not in, as long as body is not accelerating, as long as body is not accelerating, friction force is equal to applied force. Friction force is equal to applied force. तो तुमने देखा जो ग्राफ है वो 45 डिग्री में बन रहा है, मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है। Next point, when the body is about to move, when the body is about to move, applied force equals to, applied force equals to maximum force of friction. Applied force equals to maximum force of friction, which is also called limiting force of friction. Is also called limiting force of friction. So limiting, also इसका formula भी लिख लो, also F max is equal to mu into N, where N is normal reaction. N is normal reaction. Mu is a constant called coefficient of friction. Coefficient of friction is a dimensionless constant. Coefficient of friction is a dimensionless constant which depends upon nature of two surfaces, which depends upon coefficient of friction is a dimensionless constant which depends upon nature of two surfaces in contact, but not on the area, but not on the area. नेचर पे डिपेंड करता है। एन तुम्हें मालूम है नॉर्मल रिएक्शन था। दूसरी बात, जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, इट्स नॉट नेसेसरी शुड बी लेस देन 1, इट कुड बी एनी रियल नंबर। एक और चीज, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी लिख लो। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? ये वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो कि वाइल इन मोशन है, so that's called kinetic friction. Coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction. So mu k is less than mu s, मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है। While in motion it's difficult for the body to form cold welts, that's why it's less than static friction. जी तुम्हारा मंडे को टेस्ट है, संडे तुम आओगी ना वो क्लास में, सैटरडे तो छुट्टी है, तो संडे में जो एक्स्ट्रा क्लास होती है उसमें पढ़ लेना एक्स्ट्रा। ठीक है सर, संडे को तो होती है। संडे तो होती है, फिजिक्स क्लास नहीं होती एक्स्ट्रा। हाँ होती है तो आऊंगी तो। हाँ
ऐसा ना हो कि तुम हर बार की तरह संडे छुट्टी कर लेती हो ना अक्सर। नहीं सर, एक बार ही तो सर। अरे एक बार आई होंगे तुम। अच्छा, अब तक क्या लिखा बताना। कौन सुनाएगा पढ़ के? काव्या सुनाओ कहानी। क्या क्या लिखा है अब तक? फ्रिक्शन के फैक्ट्स लिखे थे ना हमने, क्या क्या लिखे हैं बताओ। रीड करो एक बार। Friction is electromagnetic in nature, which depends upon the nature of two surfaces in contact. राइट। Friction force is a self-adjusting force. हम्म। And as long as the body is not accelerating, friction हम्म। force is equal to the force applied. राइट। Then when the body is about to move, applied force is equal to max friction, which is also known as limiting force of friction. और ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। Then हाँ। limiting force of friction or Fmax is equal to nu n, हम्म। when mu is the coefficient of friction and हम्म। it is a dimensionless constant depending upon the nature of two surfaces in contact and not on their area. ओके। And nu kinetic energy is less than nu एनर्जी नहीं है, एनर्जी इज नॉट force, एनर्जी। force, force. काइनेटिक, Sorry. काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट Friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ अ बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, if a body is not accelerating, F friction force would be less than F max. So if a body is not accelerating, friction force would be less than maximum force of friction. जैसे तुमने देखा था, जब अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन था, बॉडी मूव नहीं कर रहा था, तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन ही माना जाएगा। इट वोंट बी मैक्सिमम 6 न्यूटन। जब अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन था, तो उस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन था, नॉट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। इसमें आगे लिख लो। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज opposite to, direction of force of friction is always opposite to likely motion, likely motion of the object। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने जा रही है या मूव करेगी, उसके हमेशा ऑपोजिट लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज opposite to likely motion, likely direction of motion of the body। तो अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में ये सारा लिख सकते हो। अब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो दिस इज 5 kg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें दे रखा है 0.1। दिस इज 20 kg। क्वेश्चन रिमेन द सेम। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन on this body, 5 kg mass, tension and acceleration of the system। कर लो। तो अगर बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल माना जाएगा। तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी 20 g डाउनवर्ड, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड 5 g डाउनवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट टू मोशन, विच इज म्यू इनटू एन। इस बार तीन, इसमें दो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गए 5 kg पे। दिस टाइम नॉर्मल रिएक्शन वाली इक्वेशन भी हमें काम आएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो n इक्वल टू 5 g, दैट इज n इक्वल टू 50 g को मैंने 10 ले लिया है, 50 न्यूटन।
हॉरिजॉन्टल एक्स में क्या इक्वेशन बनेगी? 5 kg मास की इक्वेशन क्या होगी दिव्या? T minus force of friction is equal क्योंकि to राइट वाल फोर्स बड़ा है तो टी माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. mm, वी कैन लिखो टी म्यू एन इक्वल टू 5a. और उसकी बताओ काव्या, सेकंड वाले की, 20 kg की. Um, it's going down. So 20G minus T is equal to 28. राइट. इक्वेशन 3. दोनों को ऐड कर दो, एन की वैल्यू म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फाइंड एक्सेलरेशन. कर लो जी हाँ. Add equation 2 and 3. A will T cancels out. Replace, substitute mu and n. 200 minus mu n. Mu is 0.1, n is 50, is equal to 25a. So 25a is equal to, 200 minus 5. yeah, 195. 7.8. Meter per second square. And then you can find tension also. किसी भी एक क्वेश्चन में डाल दोगे तो टेंशन आ जाएगा, है ना? Forty-four. किसी क्वेश्चन में डालोगे 20, इसमें थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर लो. दिस इज 200 minus t is equal to 20a. A is 7.8. 200 minus कितना आएगा ये? 156, 44. ये the answer is 44 Newton. Let's answer question number 57. असाइनमेंट सभी के पास है ना? मैंने ग्रुप में सेंड किया था. फिजिक्स का देखो, लॉज ऑफ मोशन का. So which question? 57, 57.
it is accelerating. So definitely like acceleration would be this way, 3. So this is A downward, A upward. Draw FBD तीनों का बनाओ. फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है. इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तुम लोग फ्राइडे को टेस्ट दोगे ना इस बार. फ्राइडे क्लास नहीं है, तुम लोग टेस्ट देना आके, ठीक है. 1 डायमेंशन मोशन का. सर हाँ, इसमें सेंटर ब्लॉक पे टेंशन फोर्स दोनों साइड लगेगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा. टेंशन फोर्स अलग अलग होंगे. रोप सेम सर नहीं है. रोप इज डिफरेंट. ओ सो दिस इज गोइंग डाउनवर्ड. सो T1 अपवर्ड ले लो. 10G डाउनवर्ड, ठीक है. अवे फ्रॉम द बॉडी T1, अवे फ्रॉम द बॉडी T2. फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस एक्सलेटिंग दिस वे. सो फ्रिक्शन फोर्स वुड बी F is equal to mu n. N is this, N is this. इसका होगा T2 away from the body, 2G downward is going up. F का ABD बन गया सिस्टम का पूरा. देखो जी, समझ में आ गया. मोशन विल बी टुवर्ड्स 10 kg मास ना. 10 kg मास बड़ा है तो वो नीचे जाएगा. फ्रिक्शन भी दिखाओ. इज फ्रिक्शन इट वुड बी गिवन दैट एक्सेलरेशन इन सबका 3 है. सबका ही 3 होगा बिकॉज रोप इज इनलास्टिक. ये थोड़ी कि ये इलास्टिक है तो खिंच के नीचे जाता जा रहा है. वो वहीं पे वहीं रखा है. These ropes or strings are inelastic and massless, is assumed. So all the connecting bodies, they'll have the same acceleration. दिव्या तुम टेस्ट ऑनलाइन दोगी तो आई सेंड यू द, है ना, 1D का फ्राइडे को. जिया तुम कब दोगी? सैटरडे से पहले जरूर. फ्राइडे दे दो कल ना. या परसों. हाँ, मैं फ्राइडे को शाम को कर दूंगा तुम्हें. काव्य तुम तो ऑफलाइन दोगी ना आके. ठीक है. तो क्या इक्वेशन बन रही है? शौर्य बनाई इक्वेशन. इसकी क्या इक्वेशन बनेगी बताओ. ये वाला ऊपर जा रहा है ना ये. तो T2 बड़ा होना चाहिए 2G से. इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है. इसकी क्या होगी? राइट जा रहा है तो T1 बड़ा होना चाहिए. माइनस T2 करना पड़ेगा. माइनस म्यू इंटू एन भी करना पड़ेगा, है ना. और मास इंटू एक्सीलरेशन. ठीक है. और एन क्या होगा? एन वुड बी mg. इसको रिप्लेस कर देंगे बाद में. इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी समित? इसकी T2 का T1 है. चलो ठीक है. तुम वैसे इसको ऊपर ले रहे हो तो 10 kg मास ऊपर कैसे जाएगा? तो 2 kg है. अच्छा, T1 T2 ठीक है. नहीं तो 10G तो नीचे है ना. 10G ये तो मास नीचे जाएगा. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. ऐसे लिखो. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है. अब इन तीनों को ऐड कर दो. तीनों को ऐड कर दोगे तो टेंशन दूर हो जाएगी. कैसे? T2 से कट गया. T1 से कट गया. 10G माइनस 2G इज 8G. म्यू इंटू एन. एन इज कैपिटल M इंटू G इक्वल टू 12A प्लस कैपिटल M है. राइट. तो सब्स्टिट्यूट कर दो. दिस इज 80. म्यू कितना दिया है? 0.2. कैपिटल M. G इज 10. ए कितना दिया हुआ है? 3. 36. दिस इज 3M. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग B and the 20 kg block. I think that's a typo. I think it'll be 10. बी. अच्छा, वो 2 होगा. 2 T1 सर T2 लास्ट निकालो. वाला 2 है तो सेकंड 10 होगा ना.
हाँ 10 होगा, ठीक है। तो m कितना आ रहा है? तो मेरा 8.8 आ रहा मेरा भी उतना आ रहा है बट पीछे से मैच नहीं हो रहा। 80 minus 36 is equal to 2m 5m हो गया। So this is 44 divided by 5। पीछे क्या दे रखा है आंसर? 28.8। और अब उन्होंने एक फोर्स इन्होंने अलग दिया हुआ है। हाँ मैं समझ गया, उसका रीजन ये होगा कि वो फिर एक जो 2 kg मास है ना, दैट हाँ मस्ट बी 20 kg देन। कोई बात नहीं, तुम अब इससे कर लो, हो गया हमारा, ये आ गया है मैम। ठीक है, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ना? T22 इससे निकाल लो अब। क्वेश्चन 61 करो। क्वेश्चन 61 61। फोर 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। शी इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 12 N। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को दिया हुआ है विच इज 0.6। अब ऐसे करते हैं, एफबीडी बनाते हैं इस ब्लॉक का। तो जब तुमने फोर्स लगाया 12 N, तो ये क्या करेगा? ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक फोर्स लगाएगा वॉल पे, नॉर्मल रिएक्शन। वॉल इसको छोड़ेगा नहीं। वह फोर्स इज ऑलवेज अकर इन एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्स कभी भी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है। mg किधर लगेगा? डाउनवर्ड, 0.4g। मान लो फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, और तुमने बहुत जोर लगा के एक बॉक्स को, एक ब्लॉक को वॉल पे पुश किया, तो विल द ब्लॉक विल स्टे एट रेस्ट और मूव डाउन? हम्म, नहीं, फ्रिक्शन अगर नहीं है तो क्या होगा? अगर तुमने बहुत ज्यादा फोर्स, खली को बुला दिया, वो फोर्स लगा रहा है इस पे, ठीक है, और फ्रिक्शन नहीं है, तो व्हाट हैपेंस टू द ब्लॉक? विल इट फॉल और विल बी एट रेस्ट? इट विल ऑलवेज फॉल, कितना भी फोर्स क्यों ना लगा दो। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ब्लॉक हमेशा फॉल करेगा। तो इफ यू वांट टू होल्ड अ ब्लॉक एट रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, फ्रिक्शन हैज टू बी देयर, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है।
तो होल्ड कौन कर रहा है इसको? फ्रिक्शन फोर्स ही इसको होल्ड करेगा, म्यू इनटू एन। तो सिंस अबाउट टू स्लाइड डाउन होगा नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए? ऊपर की तरफ लगना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? वी कैन फाइंड दैट। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है जरा बताना मुझे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन है? 4 न्यूटन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 12 न्यूटन। सर हाँ सर बोलो। हम ऊपर वाले को नॉर्मल नहीं लेते। ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही है, ऊपर वाले को नॉर्मल कैसे? वो तो एबनॉर्मल होता है। सर ऊपर वाला तो फ्रिक्शन फोर्स है। सर लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। वॉल और ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? एन। 0.4 जी नॉर्मल रिएक्शन कैसे हो गया दिव्शा? वो तो एम जी है। नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर नहीं होता, हमेशा याद रख लो इस बात को। नॉर्मल रिएक्शन एम जी तब होगा जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। इंक्लाइंड सरफेस पे होगा नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा। इसमें तो एम जी तो हो ही नहीं सकता कभी। ये नॉर्मल रिएक्शन ना। इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या? ब्लॉक इधर उधर भाग रहा है? नहीं। इसका मतलब 12 न्यूटन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। ये आंसर कैसे आया? 12 माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 0। तो 12 इक्वल टू एन आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन है। अब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एन। 7.2 वो हम निकाल सकते हैं। कितना है? 0.6 है ना ये? into 12 7.2 एम्पियर। यूनिट बोला करो हमेशा। is और एम जी कितना है? 4 न्यूटन 4 न्यूटन। तो कौन सा फोर्स बड़ा है? फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर भागेगा ये तो है। हाँ नहीं नहीं 4 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ द फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट 7.2। फ्रिक्शन फोर्स इज हाउ वो मच? लिमिटिंग फोर्स होगा ना। यस। फ्रिक्शन फोर्स ये would तो be 4 मैक्सिमम फोर्स ऑफ न्यूटन फ्रिक्शन है। only। ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू एफ मैक्स। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 4 न्यूटन। अदरवाइज तो एक्सलेट कर जाएगा, अपने आप भागेगा ऊपर की तरफ ब्लॉक, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। लिख लो ये स्टेटमेंट साइड में। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज लेस देन limiting force of friction, then friction force equals to applied force. Friction force equals to applied force. ये है। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है ये? देखो, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 7.2। अप्लाइड फोर्स है डाउनवर्ड वाला 4 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन इज लेस देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो 7.2 मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, तो इसको हम 4 न्यूटन लेके चलेंगे फ्रिक्शन फोर्स को। मतलब बॉडी डाउनवर्ड एक्सलेट नहीं कर रही है, होल्ड, रेस्ट पे होल्ड कर रही है। और पार्ट क्या है इसके? नॉर्मल रिएक्शन होगा 12 न्यूटन। डज द बुक मूव? नो। विद अप्लाइड फोर्सेस रिड्यूस टू 10 न्यूटन देन। अब ये बताओ, अगर हमने जो अप्लाइड फोर्स है उसको 12 की जगह 10 कर दिया, फिर क्या होगा? 12 की जगह 10 अगर कर दोगे नॉर्मल रिएक्शन को, तो तो फिर लिमिटिंग फोर्स 6 हो जाएगा। फिर भी हाँ, नहीं करेगा। तब भी तब भी तब भी नहीं गिरेगा वो, बिकॉज वो तब भी फ्रिक्शन फोर्स 4 ही रहेगा, है ना? राइट। इफ अनीशा रिमूव्स हर हैंड, विल द बुक मूव? ऑब्वियस सी बात है। विद व्हाट एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशन। यस, फ्री फॉल, जी।
फ्रिक्शन क्यों है? फ्रिक्शन तो हट गया ना फिर। अब फ्रिक्शन कब लगेगा? जब नॉर्मल रिएक्शन होगा। जब तूने उसको पुश ही नहीं किया तो नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो गया। नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो गया ना फिर। फ्रिक्शन वुड बी देयर एज लॉन्ग एज, तो यहाँ पे तुम्हें एक कहानी समझ में आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg नहीं होता। तुमने देखा इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन कितना था? इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन था। कहाँ MG। किया? अभी किया ही नहीं मैंने इंक्लाइन प्लेन वाला ना, अभी तो ये mg cos थीटा था। हाँ, बस उसका किया था। न्यूमेरिकल नहीं किया है। इससे पहले वाला, इसमें mg cos थीटा था। तो अगर इसमें फ्रिक्शन डाल दूं इसी क्वेश्चन में तो, चलो इसमें नेक्स्ट टाइम करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ पहले तो इसको भी। तो नॉर्मल सिर्फ यही रिएक्शन हम कर लेते हैं, ठीक तो इंक्लाइन विद आगे, फ्रिक्शन। हाँ करते हैं उसको भी। एंगल ऑफ रिपोज। सपोज कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और इस इंक्लाइन प्लेन को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? दिस इंक्लाइन प्लेन इज मूवेबल। इस मोमेंट में भी थीटा है, तो जाएगा mg cos थीटा। दिस वुड बी mg sin थीटा। डायग्राम बनाओ। जी इस बार अच्छे मार्क्स आई हैं टेस्ट में। बुक से सारे क्वेश्चन कर लेना। सो थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट एंड फ्रिक्शन इज ऑल्सो देयर। तो लाइकली मोशन इधर डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? लाइक दिस। फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग दिस वे। अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है? सिचुएशन नंबर वन, इट इज नॉट, द बॉडी इज एट रेस्ट। इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है लेकिन ये रेस्ट पर है। तो मुझे ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा इस? Sin theta। यस, इट वोंट बी इक्वल टू म्यू एन बट इट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, which is less than mu n। म्यू एन तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। एन mg cos थीटा बैलेंस करेगा, है ना? अब हम धीरे धीरे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे तुम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? एक ऐसा एंगल आएगा at which the body is about to slide down। That will be F max. Hmm. Is about to slide। एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज mg sin lambda normal reaction, this is mg cos lambda, and this is f is equal to mu into n। तो अब ये सिचुएशन हो गई। So this lambda is called angle of repose at which the body is about to slide down। So angle of inclination lambda at which the body is just about to slide down is called angle of repose। अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है? The body is about to slide but acceleration is zero। अब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है mg cos लैम्डा को। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। mg sin लैम्डा minus f is equal to mass into acceleration which is zero।
तो mg So sin mg sin rho equals to L. हम्म, f हो जाएगा म्यू इंटू n, n को रिप्लेस कर दो, सो tan lambda इज इक्वल टू म्यू। तो ये रिजल्ट आ सकता है डेराइव करने के लिए। प्रूव दैट tangent of angle of repose equal to coefficient of friction। कराया स्कूल में जिया? तो फिर क्या किया लॉज ऑफ मोशन में, क्या किया तुम लोगों ने अभी तक? तो बस ऊपर ऊपर से फ्रिक्शन कराया और फ्री बॉडी डायग्राम्स कराया, मतलब बस। हमने में 6 घंटा फिजिक्स पढ़ा है आज? पिछले 2 दिन से। अच्छा, क्लास स्कूल में? हाँ, क्योंकि हमारा कोई सिलेबस नहीं हुआ है। तो अभी क्या चल रहा है अभी? आज उन्होंने लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दिया। अच्छा, तो लॉज ऑफ मोशन में सर एंगल ऑफ रिपोज कराया क्या? हाँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कराया? तो वो कर लेना, एंगल प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो आएगा क्वेश्चन। तो एक तो ये याद कर लेना अब, ठीक है। अब मान लो तुमने इंक्लिनेशन को और बढ़ा दिया, थर्ड सिचुएशन। तो अगर हम इंक्लिनेशन को और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बॉडी विल एक्सेलरेट, increase angle to theta where theta is more than lambda. So now the body will accelerate downward with acceleration A. तो इस बार इसका ये फिर बॉडी डायग्राम बनेगा। क्या हो रहा है स्कूल में अभी? यही? अच्छा, तो अब y डायरेक्शन में n will balance mg cos theta as there is no acceleration. In the horizontal direction, mg sin theta minus friction, which is mu n, is equal to mass into acceleration. So this is the equation in the downward direction. n को रिप्लेस कर दो, m कॉमन लेके थ्रू आउट कट जाएगा, चाहो तो g भी कॉमन ले लो। तो इफ यू हैव अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस, then its acceleration is this। अगर किसी बॉडी को फ्रीली रखा है विदाउट एनी कनेक्टिंग रोप तो उसका एक्सेलरेशन इतना होता है। तो if a body is placed on a rough surface, it will move down with this much acceleration। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि अगर हम किसी बॉडी को किसी रफ सरफेस पे इनिशियल वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करें, ठीक है, फाइंड द रिटार्डेशन। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity u up on inclined plane having friction mu, what will be the retardation? करो।
सम्मित फ्रिक्शन किधर लगेगा इस बार? हम्म फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड, म्यू इनटू एन। एम जी साइन थीटा बचपन से इधर एक्ट कर रहा था, ठीक है। सो इफ आई टेक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट, डिसेलरेशन वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, बिकॉज रिटार्डेशन होगा। एम जी साइन थीटा, एफ कितना, म्यू इंटू एन, विच इज म्यू एम जी कॉस थीटा। एम कट जाएगा, ये नहीं कटा, सो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन वुड बी माइनस म्यू कॉस थीटा। तो अपवर्ड मोशन में फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो जाता है। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं होता। कोई रेलेवेंस नहीं है, बहुत दुख की बात है, टेंशन मत लो, ठीक है। वो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो गई बिकॉज रिटार्डेशन है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके वो वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, द बॉडी विल बी एट रेस्ट फॉर अ मोमेंट, देन अगेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। द बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन अगेन। उसका रेलेवेंस ये है कि सिर्फ जितनी ज्यादा वेलोसिटी तुम फेंकोगे उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस जाएगा ऊपर, और फिर स्लाइड डाउन करना शुरू करेगा। स्लाइड डाउन करेगा तो ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज इट गोज अप, हाँ, यू से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, जब तुम वो हाइट, अगर मैं पूछूं एट व्हाट हाइट विल गो अप टू, तब यू यूज आएगा, तब यू का यूज आएगा, ठीक है। कर लो एक क्वेश्चन, दिल मांगे वो तुम्हारा मन कर रहा है तो करो, लिखो क्वेश्चन एक। द बॉडी इज प्रोजेक्टेड up an inclined plane with initial velocity 30 meter per second. A body is projected up an inclined plane with initial velocity 30 meter per second. Find how much distance it will cover before coming to rest, and the retardation if coefficient of friction is 0.1. If coefficient of friction is 0.1 and the angle is 30 degree. मास ऑफ द बॉडी तो इमेटीरियल है, फिर भी ले लो 10 kg। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आता है? 0.1। जी को 10 ले लेना, या जो तुम्हारी जी में है वो ले लो, 9.8 या 10। तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले से तुम्हारा वो आ जाएगा, रिटार्डेशन। क्या आ रहा है रिटार्डेशन? -10 plus root 3. No, -10 minus root 3 upon 2.
रिटार्डेशन आ रहा है 10 इंटू 1 पॉइंट कितना 0.017 हो गया था। ये 1.173 नहीं हो गया? अगर आपने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो वो एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाए। हम्म कॉस √3/2 होता है ना, √3 1.73 होता है। हाँ, तो अगर 1.73 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.173 नहीं हो जाए? तो वो तो लिखा 0.0173। अच्छा 0.173 ना। हाँ हाँ, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया वो एक। ये हो गया 5.-5.81 आ। हम्म तो 11.73/2 है ना, हाँ। तो 5.85 अप्रोक्सीमेटली। तो ये इतना एक्सेलरेशन है। अब कितनी टाइम तक ये मूव करेगा वो कर सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे जाके रेस्ट पे आ जाएगा ये। तो v = u+80 यूज कर लो, है ना। v 0 हो जाएगा, u अपने को दिया हुआ है 30, a कितना है -5.85, t आ जाएगा यहाँ से। तो तुम्हारा वेलोसिटी का रेलेवेंस आ गया अब। खुश। इतने टाइम तक इट इज इन मोशन, विल कम टू रेस्ट। डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालना है तो यू कैन यूज तो देखो, थर्ड इक्वेशन ऑल्सो और सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, s = ut+½ से भी कर सकते हो, या फिर थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हो। क्वेश्चन 45 करना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कौन सा? 45 45। हम्म कराए थे, अच्छा। एफबीडी बना लो। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। M1 5 दे रखा है, M2 2, M3 3। A is also been given।
तो पहले की क्वेश्चन क्या बनेगी, T1 minus T2 minus M1G which is 5G equal to 5A. सेकेंड की क्वेश्चन क्या है, T2 minus T3 minus M3G which is 2 equal to 2A. And last T3 minus 3G equal to 3A. ये तो हमें दे ही रखा है वैसे, है ना, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये सब्स्टिट्यूट कर दो. Substitute A and you get answer. 30 plus T3 is equal to 36 न्यूटन. ये इस T3 को सेकंड में डाल दो, T2 आ जाएगा. कितना, या हो गया सीधा क्या. तो उससे T1 ही आएगा. तीन कैसे आएगा तीनों, इसमें तो T1 ही लगेगा ना. हम्म हाँ, तो फिर अलग अलग लेना पड़ेगा ना, फिर वही बात हो गई. हम्म T2 कितना आ रहा है, 60 न्यूटन. 60. हाँ, एंड T1, 120. राइट. नेक्स्ट पार्ट था सिस्टम इज एट रेस्ट. तो सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो एक्सीलरेशन जीरो कर दो उसमें, इसी में इक्वल टू जीरो कर दोगे सेकंड में, ठीक है. अगर सिस्टम रेस्ट पर है तो उसको जीरो कर दोगे तो T3 हो जाएगा 30. एंड अकॉर्डिंगली बाकी सारे पार्ट भी सॉल्व हो जाएंगे. सो सिस्टम इज नॉट एक्सेलरेटिंग एट रेस्ट में, ये हो जाएगा, ए को जीरो डाल देंगे. हाँ. हम्म ये, तो जिया तुम और क्वेश्चन करना है इसके वहां से, इसमें असाइनमेंट्स भी करना. वहाँ बुक में बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व किए, तो उनका कम से कम उनको तो कर ही लेना सबको. इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने वहाँ पे कि सॉल्व किए हुए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन है. जी. व्हाट इज मैक्सिमम फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द टॉप बॉडी, तो टू बॉडीज मूव टुगेदर. नेक्स्ट में नीचे फोर्स लगाया है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स सो दैट टू बॉडीज मूव टुगेदर. हाँ, ये क्वेश्चन कर लेना, बुक में सॉल्व किए हुए मैंने, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में. So ending the class, Friday there's no class, but you guys will come for writing the tests. And online I'll send on Friday the test in the evening, ठीक है? Thank you. थैंक यू सर. ठीक है, Thank you, sir. बाय.